हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो? ऑल गुड। गुड आफ्टरनून। एंड लेट्स स्टार्ट विद द न्यू portion of things, that is lease financing, then you know operating finance lease, term loans, and then we will move towards international sources. All right, मैंने बोला था ये पढ़ के आना है। हैव यू पढ़ा क्या? व्हाट इज कॉल्ड एज लीज फाइनेंसिंग? लीज मीन्स व्हाट? ये तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। एवरीवन मस्ट नो दिस। What is lease financing? I'll show you something. See, lease financing में there is one person called as lessor. Can you see on the screen? One person called as lessee. What does lessor do? Lessor transfers the assets. ऊपर आप देख सकते हो there is a leased asset, है ना? There is a truck or a tempo type of thing. The lessor is transferring the same to lessee. For what? For doing some business. Lessee wants some asset which he doesn't have, or probably doesn't has that much of money to buy the asset. And what does that person do? He takes the same on lease. From whom? Lessor. And what does the lessor charge from the lessee? He will give him the free of cost. वो कार जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा क्या ऐसे लेसी को? नहीं, लेसी से क्या लेगा फिर? लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट्स बोलते हैं जिसको, या फिर लीज रेंटल भी बोल सकते हैं। And between the two, lessor and lessee, this agreement is called as lease agreement. That's it. This is the concept. Okay, coming back to this. See, जितना भी अभी अपन ने डायग्राम में देखा, it says leasing is an arrangement that provides the firm with the use and control over the assets. Who will control the assets? Lessee, है ना? Without buying or owing the same. Does lessee owns the same? No. एक सेकेंड, क्या? हाँ, buying or owing the same. Lessee doesn't buy this or doesn't owe this. This is a thing which is accepted from lessor for lease payments, called as lease agreement. ठीक है? लेसी बोलता है मैं तुमको इसके रेंटल्स देते रहूंगा, आप मुझे एसेट यूज करने का राइट दे दो. This is called as use and control over the assets without buying or owing the same. It is a form of renting assets. जैसे घर रेंट होता है ना, वैसे एसेट्स भी रेंट होती है. एंड दीज काइंड ऑफ पीपल, लेस और काइंड ऑफ पीपल, व्हाट दे डू, देयर बिजनेस इज दैट टू एंटर इनटू द लीज एग्रीमेंट्स. बहुत सारे एसेट्स खरीद लेंगे एक साइड में, और फिर जिनको जिनको वो एसेट्स की जरूरत है उनको उनको वो ट्रांसफर करेंगे फॉर लीज पेमेंट्स. ठीक है, उसमें से प्रॉफिट कमाएंगे. ऑलराइट, इट इज अ फॉर्म ऑफ रेंटिंग एसेट्स. लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ओनर ऑफ द एसेट. ओनर कौन होता है? लेसर. And the user of the asset called as lessee, whereby the lessor gives the right to use the asset thereto, the lease over an agreed period of time for a consideration called as lease rental. Correct है? The contract is regulated by the terms and conditions of the agreement. Agreement में हम सारे terms and conditions को लिख लेंगे. ऑलराइट, कि उसका मेंटेनेंस वगैरह. वैसे तो क्या होता है यहाँ पे देखो, नीचे कुछ अपन चीजें पढ़ेंगे. यहाँ पे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज, टू टाइप्स ऑफ लीज होते हैं. ये लीज का खाली मीनिंग दिया है, देयर इज अ लेसर, देयर इज अ लेसी, एंड लेसर गिव द असेट, लेसी गिव्स द लीज रेंटल्स, एंड दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज लीज एग्रीमेंट. बाकी सारा जो स्टेप्स है, मतलब ऑपरेटिंग लीज कैसा काम करता है, फाइनेंस लीज कैसा काम करता है, अभी अपन नीचे देखेंगे. ठीक है? लीज पेज, लेसी पेज द लीज रेंट पीरियोडिकली टू द लेसर as a regular fixed payments over a period of time. Do you get this? Now come over here. यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लो आपके नोटबुक में. Two people, this is lessor, this is lessee. अभी जैसा डायग्राम में दिख रहा था बस वैसे ही सेम मैं बना देती हूँ. This is the asset. Okay. Then between the two is lease agreement called as contract. Okay. And person, lessee, will pay the lease payments, or called as lease
rentals. ठीक है, draw this. This is something called as lease. Copy down. Now what can you do is you can draw two parts. One is operating lease and one is financing lease, financial lease. What is the difference between the two? Operating and finance. Can anyone tell me? First basic difference is for short period of time, and comparatively this is a long period of time. Okay? Operating lease में certain assets which are to be lesser and lessee के बीच में कौन से एसेट को ट्रांसफर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर, व्हीकल और डेटा मेंटेनेंस. ठीक है, ऑल दिस थिंग्स. डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, नॉट डेटा मेंटेनेंस, डेटा processing equipments and communication systems. All sorts of assets are leased in operating. And finance में, finance lease में land, building, land, building, machinery, है ना, etc. Therefore, this is for long period of time. This is the basic difference. Okay. Now go to operating lease column and read the stuff. Read the stuff from your book. Then we'll write down the points. I'll tell you the story as well into this. Read. I am giving you time. You have to read this one. Operating or service lease. This can be asked in MCQ question as well. What is operating lease called as? 4 options दे देंगे. So you need to write down service lease. The important stuff is this: cancelable at short notice. The period of operating lease is less than the useful life of asset. Option of renewing the lease after the expiry of lease period. Generally responsible for maintenance, insurance, taxes. Who is responsible? Lessor. Who is the owner of the asset? Lessor. And that owner is only responsible for maintenance, insurance, taxes of the asset. Whereas it is all opposite into financing lease. Financial lease में the lessee is responsible for all these things: maintenance, insurance, taxes and all. Short-term cancelable lease, it implies higher risk to the lessor, but the higher lease rentals to the lessee. We'll discuss this in a small story. But ये एक बार पढ़ लो तुम. Okay, then we'll write down the pointers as well and discuss a short story upon this. हो गया? Come here. पहले पॉइंटर्स लिख लो, उसके बाद में एक स्टोरी डिस्कस करेंगे. नंबर 2, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो तो समझ गया. कॉन्ट्रैक्ट लेस देन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट. यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट हो सकता है मे बी अभी ये सारा अगर आप देखोगे कंप्यूटर, व्हीकल, इसका आई थिंक 5 to 6 years तो होता ही है. 5 to 6 years, हाँ ना.
So the ये जो contract होता है between lessor and lessee, this is lesser than that useful life of the asset. That means it would be for 2 years, it would be for 3 years, that way. ठीक है? Also, number 3, the lease is cancelable at short notice by lessee. लेसी को बिजनेस करने में थोड़ा दिक्कत जा रहा है, मतलब उसका बिजनेस अभी चल नहीं रहा है, या वॉट एवर थिंग्स, उसने उसका खुद का कंप्यूटर खरीद लिया है. So why he needs the, this contract now? He will just say that short notice pay to the lessor that I don't require the, this agreement now, and I don't require this computer now. You take away this. So it is a cancelable at short notice. By whom? By lessee. Period is less than the useful life of asset. We have already studied this. And one more sentence, it is written that does not necessarily amortize the original cost of asset. Amortize means what? See, suppose the computer cost. अभी नीचे एक example लेते. Suppose there is one computer which is leased, costing say 20,000. ठीक है? So what does this lessor expects? जो भी लेसी से लीज रेंटल्स आएगा वो एटलीस्ट ये रिकवर कर ले, ये अमाउंट रिकवर कर ले. ऑब्वियसली मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, लेसर इज ट्रांसफरिंग दिस एसेट टू लेसी ऑन दिस लीज एग्रीमेंट कॉस्टिंग 20,000. तो ये क्या बोलेगा कि 20,000 का 19,000 हो जाए, 18,000 हो जाए, ऐसा सोचेगा क्या? नहीं, ये सोचेगा कि ये जो लीज रेंटल्स के फॉर्म में जो भी मुझे इनकम हो रही है किससे, लेसी से, ये एटलीस्ट मुझे कुछ प्रॉफिट दे. Profit, or else we can say it as ROI, return on investment. This is the investment done by lessor. तो ये रिकवरी होना चाहिए लेसी से. बट अगर नहीं होती है तो सपोज दिस इज कैंसल्ड, लेसी हैज कैंसल्ड द एग्रीमेंट एंड दे दिया उन्होंने कि भाई लेके जाओ आपका कंप्यूटर, मैंने खुद का खरीद लिया है. What this lessor will do? This lessor will transfer this computer to some other lessee. कोई और लेसी देखेगा जिसको जरूरत है कंप्यूटर का, उसको बोलेगा कि एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, है ना, एंड ऑल्सो पे मी द लीज रेंटल्स अकॉर्डिंग टू दिस. वो फिक्स रहेगा इनटू दैट एग्रीमेंट ऑन द टर्म्स डिसाइडेड बाय द टू. So whatever it is, it says that it does not, write down, does not necessarily, ऊपर भी लिख सकते हो, ये खाली मैंने एक स्टोरी बता दिया यहाँ पे. नंबर 3, नंबर 4, does not necessarily, wait a second, amortize the original cost of asset. तो इट सेज दैट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पूरा का पूरा हम जो कॉस्ट सोच रहे हैं कि इतना पूरा एमोर्टाइज करके हम रिकवर कर लेंगे, कभी कभी वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि दिस इज द शॉर्ट टर्म पीरियड. शॉर्ट टर्म के लिए ये लीज होता है, शॉर्ट टर्म लीज. व्हाट वी अज्यूम इज ये 20,000 रिकवर हो जाएगा, बट समटाइम्स दैट डजंट हैपन. वी डज नॉट इवन थिंक अबाउट कि ये एमोर्टाइज हो जाएगा बराबर से बिटवीन दिस लेसर एंड लेसी एंड बिटवीन द टाइम पीरियड. मतलब ऐसा नहीं मान के चल सकते कि 20,000 पूरा रिकवर हो ही गया. यू नीड टू लीज दिस टू डिफरेंट लेसीज, देन आफ्टर सम इयर्स यू विल गेट दैट कि हाँ चलो अभी रिकवर हो गया. So it says that does not necessarily amortize. This is important one. The original cost of asset. Original cost is 20,000 and it does not necessarily amortize that cost of asset. मतलब does not recover that 20,000. ठीक है? Ideally it should, because हर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, बट नहीं हुआ है तो क्या करे? That's the risk involved in the business. अगर ऐसा नहीं हुआ तो write down one more sentence here. The lessor make further leases or sell the asset to recover the cost of investment and expected ROI.
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं या आरओआई बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिख दो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ। तो टू ऑप्शन, आइदर अगर ये वाला लेसी अगर कैंसिल कर देता है कॉन्ट्रैक्ट या फिर उससे पूरा का पूरा कॉस्ट रिकवर नहीं होता है तो वो क्या करेगा, लेसर क्या करेगा, अपना एसेट किसी और लेसी को देगा टू यू नो एटलीस्ट रिकवर दिस कॉस्ट ऑफ एसेट एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कुछ तो रिटर्न भी कमाएगा इस पे, 1,000 2,000 कुछ तो कमाएगा, ठीक है। और एल्स अगर इससे भी नहीं होता है, सपोज दिस लेसी ऑल्सो सेज दैट नो आई हैव टू परचेज माई ओन एंड यू नो कैंसल द एग्रीमेंट, देन व्हाट डज दिस लेसर विल, ये लेसर क्या करेगा, ये सेल कर देगा, सेल द एसेट टू रिकवर द कॉस्ट एंड सम रिटर्न, ठीक है। लॉस हुआ तो फिर तो यार क्या ये मतलब है ना, मतलब ये डायग्राम आप बना सकते हो आपके नोटबुक में, अभी नहीं बाद में, क्या, आई गिव यू टाइम, आई गिव यू टाइम फॉर दिस। तो इसके ही नीचे नंबर 4 पॉइंट के नीचे आपको ये वाला डायग्राम बना देना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट, number 5 point, it says the lessee has option of renewing the lease after expiry of lease period. Of course this option is available. Suppose there is one lessor, there is one lessee, transferred computer or vehicle, you know they are paying the lease rentals, लेसी क्या भर रहा है, लीज रेंटल्स भर रहा है। नाउ द लीज पीरियड से इट इज ऑफ 2 years, 2 years आर कंप्लीटेड। नाउ अगर लेसी को फिर भी एसेट को यूज करना है तो ही कैन नॉट यूज द एसेट लाइक दैट ओनली, ही नीड टू एंटर और रिन्यू दैट कॉन्ट्रैक्ट अगेन, से फॉर एग्जाम्पल उसको और 1 साल यूज करना है लीज पे, तो ही कैन रिन्यू द सेम बाय 1 year, ठीक है। नंबर 6, who is responsible for maintenance, insurance, taxes, for all these things lessor is responsible, lessor, because he is the owner of the asset। समझा क्या, मतलब से व्हीकल्स है, आपका कंप्यूटर है ना, वो कुछ सिस्टम्स है, एनीथिंग जो भी ऐसा लीज पे दिया होगा, तो मेंटेनेंस और इंश्योरेंस और टैक्सेस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, लेसर। एंड फॉर दिस ही इज एट रिस्क, कौन है रिस्क पे, द लेसर, क्योंकि देखो यूज कौन कर रहा है एसेट को, लेसी, हु इज द वन यूजिंग द एसेट, लेसी, एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, लेसर। अभी अगर समझो लेसी के हाथ से वो कंप्यूटर खराब हो जाता है या व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंश्योरेंस तो किसने निकाला है, लेसोर ने, पैसा किसका अभी अटक गया है, लेसोर का, यूज कौन कर रहा है एसेट, लेसी, हु इज एट रिस्क, लेसोर। आर यू गेटिंग द पॉइंट। नंबर 7, इट इज अ शॉर्ट टर्म कैंसलेबल लीज, आई थिंक वो पॉइंट अपन ने ऊपर लिख दिया है ये, ठीक है। तो अगेन बार बार लिखने का काम नहीं है। इट इम्प्लाइज हायर रिस्क टू द लेसर बट हायर लीज रेंटल्स टू लेसी। देखो दोनों भी एट रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि अगर ये रिस्क बेयर कर रहा है, लेसर इज बेयरिंग द रिस्क, अगेन वील ड्रॉ सम डायग्राम हियर एंड वील ट्राई टू एक्सप्लेन दैट वे। देयर इज अ लेसर, देयर इज अ लेसी, नाउ this person is responsible for maintenance, insurance and taxes, so therefore he is at risk। अगर ये रिस्क पे है, ये अपना एसेट देकर रिस्क पे है, ये इससे भी कुछ तो रिकवर करेगा, रिकवर क्या रिकवर करेगा, लीज रेंटल, सादा सुदा लीज रेंटल लगाएगा क्या, नहीं, ही विल चार्ज हिम हायर लीज सो दैट ही कैन रिकवर ऑल दिस कॉस्ट, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, टैक्सेस, ये क्या अपने जेब से थोड़ी भरेगा। Would he do all these things from his pocket? No, he will recover all these things from lessee only,
but he has the burden of doing all these things. So the lessor is at risk, and from lessee he will charge higher lease rentals. ठीक है, come on to this. Read all these pointers again. ये याद हो जाना चाहिए. They'll ask you the question. Write about operating lease or what is operating lease. Then you need to tell them कि operating lease क्या होता है and what are their characteristics. Characterized by the following features. These are the features. मतलब अपना जैसा नाक, आँख, कान, ये फेस के फीचर्स है ना, वैसे ऑपरेटिंग लीज के ये सारे फीचर्स हैं. नंबर 1, द कॉन्ट्रैक्ट इज लेस देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. It is cancelable at short notice by the lessee. Operating lease, it is less than the useful life of the asset. What period? It does not necessarily amortize the original cost of assets. I have explained the meaning of this amortize. The lessor has to make the further leases or sell the asset to recover his cost of investment and expected rate of return. If suppose he does not recover that 20,000 cost of his computer, then what is the sense in doing that agreement and all? What is the sense of doing that business of lease? The lessee usually has the option of renewing the lease after the expiry of the lease period. The lessor is generally responsible for maintenance, insurance, taxes of the asset. And it is for the short term cancelable lease. It implies higher risk to the lessor and the higher lease rentals to lessee. Okay, all these sorts of points you have to write down into your examination. If the question is asked what is operating lease, and write down the features of operating lease. Okay, like this. And come on down. यहाँ पे क्या लिखा है देखो. The operating leasing is common to the equipments which requires expert technical staff for maintenance and exposed to technical developments. Does this computers, vehicles, data processing equipments, communication systems are very much technical, or does this require technical knowledge? Also, this is exposed to technological developments, different sort of computers, different sort of vehicle. कितना सारा देखो ना. अगर समझो अभी अपन कार्स का बात करें, मारुति 800 की बात करो, और अभी जो ये सारा आता है, क्या सफारी आता है, देन व्हाट हैरियर आता है, नेक्सॉन आता है. लुक एट दोज व्हीकल्स. You can operate these vehicles from anywhere. We have recently got that car, Tata Nexon. उसमें एक फीचर क्या है पता है क्या? Very amazed with that feature. कि suppose the car is located here, at my place, and suppose my brother is located, he is in Pune. Located बोल रही हूँ मैं, located तो यार बिल्डिंग को बोलते हैं. He is there in Pune. So वहां से he can operate the vehicle. He can unlock the vehicle, he can lock the vehicle, then he can horn the vehicle. है ना, सिर्फ चला नहीं सकते. It is just that you cannot drive like that, sitting there. You can do all sort of thing sitting there in Pune. है ना, you can on the AC, you can on the music, all sort of things. So all these are what technological developments, right? So it also requires the expert technological staff. है ना? Examples are computers, vehicles, data processing equipments, data communications, etc. Operating lessors usually limit their activities to field and engage themselves in the purchase of large number of similar type of machines and equipments. इनका business है यार. What these operating lessors do, they engage themselves in purchase of large number of similar types of machines and equipments, like different types of vehicles, different type of computers, different type of communication systems. ये सारा वो खरीद के रख लेते हैं और different lessees को लीज पे देते हैं कि भाई आप हमको लीज रेंटल्स दो, दिस इज माय बिजनेस, है ना. They are able to offer attractive terms to their customers because savings in maintenance cost. ठीक है, all right. This is the operating lease. Finance lease. First of all, finance lease किसका होता है? Leasing land, building, machinery, fixed equipments, etc. And this is for long term. कहीं पे लिखा होगा, प्लीज सी कहाँ पे है लिखा हुआ. It says it is for longer period and it is non-cancelable. So can you see the difference now? अगर मैं पूछूंगी आपसे कि ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटिंग लीज सारा वो मशीनरी, व्हीकल, इनमें डील करेगा.
और फाइनेंस लीज लॉन्ग टर्म एसेट्स, जो ये सारा है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स वगैरह में डील करेगा। प्लस दिस इज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऑपरेटिंग लीज शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। Operating lease is cancelable at short notice, but this lease is not cancelable. Finance lease is not cancelable. देखो ये सारा डिफरेंस तो यहीं पे मिल गया आपको। देखो क्या बोलता है, it ensures that the lessor for amortization of the entire cost of investment plus expected return on capital outlay during the terms of lease. What is the meaning of this? ऊपर ऑपरेटिंग में पढ़ा था हमने, डज नॉट गारंटी और डज नॉट नेसेसरीली रिकवर्स द क्या बोलते हैं जिसको, अमोर्टाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड आरओआई। नहीं मिलता। अगर नहीं रिकवर किया तो एक काम करो और लेसीज को लीज करो, नहीं तो सेल द एसेट टू रिकवर द कॉस्ट एंड रेट ऑफ रिटर्न। बट इन दिस फाइनेंस लीज it ensures lessor for amortization of the entire cost of investment plus expected return. For example, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, डायग्राम यहीं पे बना दूं क्या? हम नहीं बनाती हूँ इसके, मतलब डिफरेंस एकदम आराम से समझेगा आपको। सेकेंड, what's the there is this lessor, there is this lessee। फाइनेंस लीज लिखती हूँ मैं यहाँ पे, फाइनेंस, say for example this is for building, lease rentals। Now say this building has the cost of 20 lakhs, ठीक है। Now this is long term lease plus it is non cancelable। Now this lessee cannot come like that someday and say that ये building वापस ले लो, take away this lease agreement, I don't require the building। अरे भाई कहाँ से पैसा लाएगा? That computer is 20,000, that lessee can get खुद से खरीद के लाके अपना यूज कर सकता है। But from where he will get this 20 lakh? He doesn't has this much of money। He has to use this asset for long term and it is a non cancelable lease। तो इसमें गारंटी है, it ensures the amortization of the cost of asset, of the cost of asset plus rate of return। मतलब अभी ये जो लेसोर है इसने ये बिल्डिंग से 20 लाख में खरीदा है, तो क्या 20 लाख से रिकवर करेगा? नो, मोर देन दिस, मतलब प्रॉफिट भी कमाएगा। प्रॉफिट और से आरओआई कितना, से फॉर एग्जांपल 1 लाख का आरओआई कमाना है इसको, कितना रिकवर करेगा लेसी से? 21 लाख। सो इट एंश्योर्स दिस, एमोर्टाइजेशन एंश्योर करता है। ही नीड नॉट गो टू सम अदर लेसी, ये लेसोर को किसी और लेसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, गो टू सम अदर लेसी और सेल द दिस एसेट टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ एसेट एंड रेट ऑफ रिटर्न। नो, ठीक है क्या? ये समझा क्या? दिस इज एक्चुअली द यू कैन से प्रॉफिट, बेनिफिट ऑफ समथिंग, एडवांटेज बोल सकते हैं फाइनेंस लीज का। इट इज नॉन कैंसिलेबल फॉर लॉन्ग टर्म एंड इंश्योर्स द amortization ऑफ द कॉस्ट एंड रेट ऑफ रिटर्न। Do you get my point? Come here. The finance lease is usually characterized by the following features. क्या क्या features है? We'll write down it later, but once read please. The present value of the total lease rentals payable during the period of lease exceeds for is equal substantially whole of the fair value of leased asset। क्या मतलब होता है इसका? का मीनिंग ये होता है, अभी मैं लिखती हूँ यहाँ पे लीज, से फॉर एग्जाम्पल मंथ वाइज लेते हैं हम लोग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मंथ वाइज लीज रेंटल देते हैं। आई थिंक वी कैन कीप इट एज 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, ऐसे लीज रेंटल्स चलते आ रहे हैं लाइक दिस, blah 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 goes on etc for years।
और यू कैन ऑल्सो से दिस एज अगर ईयर्स का लीज रहा, these are recovery from month, every month 5000 5000 5000. if say year से बात करेंगे तो first year they will recover some 1,50,000, second year 1,50,000, third year 1,50,000, this way. It says that, read the sentence again, the present value of total lease rentals, present value of total lease rentals payable during the period of lease exceeds, this exceeds the substantially whole of the fair value of asset. से एसेट कितने का है? 20 lakhs का, 20 lakhs का असेट से ऑल दिस रीज रेंटर्स और उसका भी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, एक परसेंटेजेस गिवन होता है जिससे यू नीड टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ समथिंग. मतलब ये तीसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो आज कितना, सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो आज कितना, दैट वे. वो सारा अपन आगे पढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल उस पर जाएंगे सॉल्व करने पे, तब आपको समझेगा कि प्रेजेंट वैल्यू किसको बोलते हैं. अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, जो टोटल लीज रेंटल्स होते हैं, सालाना बोलो या मंथली बोलो, this exceeds the substantially the whole value of the fair value of the asset. समझा क्या? 20 लाख से ये जो रेंटल्स रहेगा इसका वैल्यू ज्यादा ही रहेगा, तभी जाके तो लेसर प्रॉफिट कमाएगा, रेट ऑफ रिटर्न कमाएगा कुछ. दैट इज द रिटर्न फॉर whom? लेसर. डू यू गेट द पॉइंट? अगेन रीड द सेंटेंस. Again read the sentence. Present value of total lease rentals, अभी जो अपन ने बनाया, payable during the period of the lease exceeds or equal to substantially the whole or whole of the fair value of leased asset. It implies that within the lease period the lessor recovers his investment, that is what, 20 lakh. लिख दो यहाँ पे 20 lakh investment of asset along with the acceptable rate of return. और ऑफ कोर्स अगर 20 लाख से कुछ ज्यादा रिकवर कर रहा है लेसर, तो वो तो उसका आरओआई ही हुआ ना, रेट ऑफ रिटर्न ही हुआ ना. करेक्ट है क्या? डू यू गेट द पॉइंट? एंड इट सेज नॉट टोटल लीज रेंटल्स, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल लीज रेंटल्स. we'll learn how do we find out present value, but अभी नहीं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब. यहाँ पे आप एक स्टार मार्क करके रख दो, पुट अ स्टार हियर, एंड जब अपन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू. देन यू कैन राइट डाउन हियर. ओके, एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग लीज, अ फाइनेंस लीज इज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. वो पहले ही लिख दिया है अपन ने अपने डिफरेंस में. इट इज यूजुअली नॉन कैंसिलेबल, वी नो दिस एज वेल. The lessee is generally responsible for the maintenance, insurance and services of the asset. ऊपर operating में who was responsible? Lessor. यहाँ पे the lessee is generally responsible for the maintenance, insurance and services of the asset. That means land, building, machinery, इसका maintenance, insurance, taxes कौन करवाएगा? Lessee करवाएगा. Although the lessor is the owner, lessor will only give the asset कि हाँ ले लो आप, ये आपके पास में right है asset का use करने का. बाकी एवरीथिंग लेसी विल डू. यहाँ पे आज समझो, लेसी विल स्टैंड एज द ओनर ऑफ द एसेट ओनली, उसको सब करना है. एंड इट इज अ नॉन कैंसिलेबल लीज एंड दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म. तो आप समझ सकते हो कि लेसी वर्क्स एज गुड एज द ओनर ऑफ द एसेट ओनली. ऑपरेटिंग में ओनर इज लेसर, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस? लेसर. यहाँ पे द लेसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. Do you get the point? Lessee. These are the major, differences between operating and finance lease. Now, however, the terms of the lease agreement in some cases may require the lessor to maintain. अगर terms में, you sign the agreement. If it says that, building will be maintained or insured or, taxes, all those things would be paid by lessor, then that would be done by lessor. बट नॉर्मली, मतलब अगर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक जनरल बात से जाएंगे, तो अगर कुछ नहीं बोला है तो इट इज अज्यूम्ड इन फाइनेंशियल लीज दैट हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स? लेसी इज रेस्पॉन्सिबल. बट इफ दे एग्री इन टर्म्स,
terms of the lease agreement in some cases may require the lessor to maintain and service the asset. Such an arrangement is called as maintenance or gross lease. ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? ग्रॉस लीज. इफ लेसर इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स, मेंटेनेंस एंड ऑल. ठीक है. बट यूजुअली इन एन ऑपरेटिंग लीज द लेसी who has to pay for maintenance and service cost, such a lease is known as net lease. Operating lease में the lessor does all these things, maintenance and all, but recovery किससे होगा? recovery किससे होगा? lessee से ही होगा. In that case, that lease is called as net lease. ठीक है. The financial lease usually provides the lessee an option of renewing the lease. वो दोनों में भी है, ऑपरेटिंग में भी है और फाइनेंस में भी है, फॉर अ फर्दर पीरियड एट अ नॉर्मल रेंट. ठीक है. कैन यू राइट डाउन हियर ऑल दीज पॉइंट्स? ये अपोजिट है, इट कैन बी मोर एज वेल. नॉन कैंसिलेबल. It amortizes the original cost of assets plus also recovers the rate of return as well. तो ये सेंटेंस को पूरा अपोजिट लिख सकते हो यहाँ पे, है ना. डायग्राम के थ्रू मैंने बताया है आपको यहाँ पे. It exceeds the lease rentals. Sorry, the lease rentals exceeds the value of fair value of the asset. ठीक है. Same thing is available here. Lessee has an option of renewing the lease after the expiry of lease period. ठीक है. यहाँ पे लिख दो मेंटेनेंस, इंश्योरेंस and taxes. Who will bear? Lessee. Yeah. But if suppose the terms are agreed, स्टार मार्क डाल के राइट डाउन. Terms in agreement agreed, lessor will bear all this cost. All these. ठीक है. प्लीज डू नॉट गो ऑन द हैंड राइटिंग. मेरे राइटिंग पे मत जाना. गो ऑन द जो अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं उस पे जाओ. ठीक है. नॉन कैंसिलेबल वगैरह लिख दिया है अपन ने. व्हाट एल्स? दैट्स इट. तो ये एक बन गया है चार्ट. व्हाट इज लीज and then the difference between the two, operating and finance lease. ठीक है. I'll give you time after this. You can copy down the same. Next we come to term loans. Term loans. Before we move to term loans, please understand what is gross lease and what is net lease. Net lease is something which is including maintenance, insurance and cost of asset. Cost of asset तो recover करना ही है. एंड सपोज इंश्योरेंस वगैरह भी ये सारा अगर कौन ये बेयर करता है, अगर लेसर बेयर करता है तो वो किससे रिकवर करेगा? अल्टीमेटली लेसी से. तो इफ ही रिकवर्स एवरीथिंग फ्रॉम द लेसी फॉर अ पोर्शन ऑफ दिस मेंटेनेंस प्लस कॉस्ट ऑफ एसेट, देन दैट इज कॉल्ड एज नेट लीज. एंड समझो यहाँ पे ये लेसर सब कर लेता है, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, एवरीथिंग, एंड चार्जेस फिक्स्ड अमाउंट फ्रॉम द लेसी. नाउ वो सब झमेला नहीं है इसमें कि मेंटेनेंस कितना, इंश्योरेंस कितना, टैक्सेस कितना. देयर इज अ फिक्स्ड चार्ज फ्रॉम द लेसी एंड दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड लीज रेंटल्स. दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस लीज. ठीक है. नेट में मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एवरीथिंग इज चार्ज फ्रॉम द लेसी. ठीक है. So this is the basic difference between gross lease and net lease. Okay, come to term loans now. Term loans. First of all, I would like you people to read this, but again I have a story for this. Okay, why we use this? Okay, read. We'll discuss. This is the person X. ठीक है. Person X doing some business. Okay. Now this person requires some sort of machines and equipment.
requires this one tempo, requires one machine, कुछ तो machine है, requires some equipment for doing this business basically, and also requires some some other machinery. So here, so all sort of things are required by this person X. Now this tempo is available in India. It is available in India. This machinery is available in India. So this equipment and this machine, this is not available in India. Now what do? I have to purchase these two things from somewhere else, that is from abroad. ठीक है, abroad मतलब क्या, foreign. Now I need money for this, but I don't have money. I need money for that, but I don't have money. What do? मैम लोन ले लूँ. इधर इंडिया में ले लूँ क्या? इंडिया में ले लूँ लोन, क्या फायदा है? आई हैव टू मेक द पेमेंट अब्रॉड हियर, बिकॉज यहाँ से मशीन इक्विपमेंट आएगा, पैसा देना पड़ेगा बाहर. तो यहाँ पे तो मैं लोन लेके कोई फायदा नहीं है, इंडिया में लोन लेके फायदा नहीं है, बिकॉज इंडिया में अवेलेबिलिटी भी नहीं है, लोन लेके भी फायदा नहीं है. व्हाट डू? मुझे बाहर से लोन लेना पड़ेगा. व्हाट हैपेंड यार, वेट अ सेकंड, डिस्कनेक्ट. ओके ओके, so what do? अब्रॉड से आई विल टेक लोन. बट अब्रॉड से लोन लेना इतना आसान है क्या? सपोज मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू बाय दिस इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी फ्रॉम फॉरेन, दैट इज से फॉर एग्जांपल यूएस, एंड आई वांट द लोन इन डॉलर्स. तो कोई बैंक उठ के बोल देगा कि मुझे ओके टेक द लोन, क्योंकि ये लोन को रीपे भी करना पड़ेगा. आई हैव टू रीपे दिस लोन. हाउ डू आई रीपे? आई डोंट हैव मनी नाउ. आई विल डू द बिजनेस फ्रॉम दिस मशीनरी इक्विपमेंट. I will earn some rate of return, and then I'll pay back this loan to the foreign country. As of now I don't have money, but I want to take loan. Foreign company says okay, we will give you loan if there is some condition. क्या condition? बोलो, कुछ बोल सकते हो, क्या condition होगी? क्या condition होगी? companies with good track record for track record of 3 years or more can raise funds by issue of, say whatever, equity and debt capital in international market. Capital in international market. And that is called as what? Term loan. This is called as term loan. Okay, I think you have understood the concept. Now read it here. Now that can be asked in MCQ, okay, that 3 years track record in term loans. This is also an important source of long-term financing. Yes, I have to get the machine or equipment, so this will be for long-term financing only. This will be there in my company for a longer period. There is different financial institution, national level as well as state level, which provide financial assistance for taking up projects. Term loan as a source of long-term finance is discussed in detail as the later stage in this chapter. But यहाँ पे छोटा सा इन्होंने एक पैराग्राफ दिया है, लेटर ऑन और भी सारा डिस्कशन किया है जो बाद में पढ़ेंगे. Sometimes the funds are required in foreign currency to make payment for the acquisition and import of plants and equipments. In 1992, Government of India permitted Indian companies with a good track record of 3 years or more to raise funds by issue of equity or debt capital in international market. There are different means of arranging long-term finance in foreign currency. Are you getting my point? ये सारा story उधर detail में cover हो गया है. Now what can you do is here put a small star and underline this.
Indian companies with a good track record of 3 years or more can raise funds by issue of equity and debt capital in international market. That is called as what? Term loans. ठीक है. Now there comes international sources, जहां से हम फंड रेज कर सकते हैं. देखो, इंटरनेशनली फंड रेज करो, फिर वहां से फंड आ गया तो वहां पे आप एसेट खरीद सकते हैं. फॉर एग्जांपल डिपॉजिटरी रिसीट्स. नाउ ये क्या होते हैं? जैसे आप इंडियन कंपनी, यहाँ पे इंडिया में आप शेयर होल्ड करते हैं कंपनीज के, जैसे बाहर इंटरनेशनली you can raise funds through giving your equity shares in the form of DRs, depository receipts, called as ADRs and GDRs. ADRs are American depository receipts and GDRs are global depository receipts. डिटेल में पढ़ेंगे क्या है, but अभी के लिए you need to first understand what a DR. So DR means any instrument in the form of depository receipt or a certificate क्रिएटेड बाय ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक आउटसाइड इंडिया. मैम कुछ भी नहीं समझा, आ जाओ इधर. आई नो कुछ भी नहीं समझा. देखो, लुक हियर, ऐसे ध्यान से घूर के देखो, थोड़ा सा ऐसे गुस्से से. समझा क्या कुछ? देखो देखो, डायग्राम को देखो. कैन यू लुक हियर? इट सेज दैट इट इज एन इंडियन कंपनी. कनेक्टिव. ठीक है. दिस इज एन इंडियन कंपनी. दिस कंपनी इज इंडियन कंपनी. इट हैज गॉट शेयर्स. जो इंडिया में तो डील कर ही रहे, इंडिया में शेयर्स बिक रहे हैं ना. हाँ, ये शेयर्स ये कहाँ डिपॉजिट कर रही है? एक डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास. एक कस्टडी बोल सकते हैं आप जिसको, एक कस्टोडियन के पास, इंडियन डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास इन्होंने ये डिपॉजिट कर दिए. ये कहाँ, ये आप पैसा देख सकते हैं. पैसा ये कहाँ पे चलता है? इंडिया में. फॉर एग्जाम्पल इंडिया ही लिखती हूँ मैं यहाँ पर. ठीक है. नाउ दिस डोमेस्टिक कस्टोडियन, व्हाट इट सेज, यू टेक दीज शेयर्स विथ यू. ये आपको क्या सिंबल दिख रहा है? डॉलर. आउटसाइड इंडिया these shares are, this custodian bank will transfer here with this bank, outside custodian bank, and they will say acknowledgement of receipt of shares. Who will say acknowledgement of receipt of shares? This bank. ये इंडियन कंपनी शेयर्स डिपॉजिट कर रही है इसके पास, फिर ये डिपॉजिट कर रहा है इसके पास, और यहां से प्रोसीड्स ट्रांसफर हो रहे हैं इंडियन कंपनी के पास. नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली इंडियन कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर्स लोगों को ट्रांसफर करती है. पीपल, लोग क्या देते हैं इनको? पैसा. प्रोसीड्स बोल सकते हैं अपन, प्रोसीड्स बोलते हैं, सिंस यहाँ पे ये प्रोसीड्स बोला है तो प्रोसीड्स ट्रांसफर्ड. ठीक है, सिंपल प्रोसीजर. बट अभी वी आर लुकिंग फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. द फॉरेन पीपल विल नॉट बिलीव लाइक दैट कि हाँ इंडियन शेयर्स है ना तो डायरेक्टली एक काम करती हूँ, अमेरिका के लोगों को बोलती हूँ एक काम करो, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक अगर लगाती हूँ मैं तो डायरेक्ट इनको बोलती हूँ मेरे शेयर्स खरीद लो. वैसे अलाउड भी नहीं है और ये लोग उतना भरोसा भी नहीं करेंगे. क्यों देंगे आपको डॉलर्स? क्यों देंगे पेमेंट उनके रिस्क पे? क्यों वो इन्वेस्ट करेंगे ऐसा? उनको किस पे भरोसा है? उनको उनकी बैंक पे भरोसा है, और अपने को अपने बैंक पे भरोसा है. और ये बैंक को अपने पे भी भरोसा नहीं है. ये बैंक भरोसा करेगी, इनका लिंक रहेगा ना कोई इंडियन बैंक में तो भरोसा करेगी. ये दोनों भाई भाई. समझा क्या आपको? दीज टू बैंक्स, ये और ये, दीज आर भाई भाई कस्टोडियन. दे विल नॉट बिलीव अस. Even these people will not believe us, but these custodian bank will believe each other. What we will do is indirectly what we will be doing is, देखो यहाँ के जो शेयर्स है वो अल्टीमेटली किस तक जा रहे हैं? लोगों तक, इन द फॉर्म ऑफ दैट एडीआर और जीडीआर. बट कैसे जा रहे हैं? देखो, इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी डिपॉजिटिंग देयर शेयर्स टू इंडियन कस्टोडियन. ठीक है, ये इंडिया है सिंस यहाँ पे रूपी का सिंबल दिख रहा है. ठीक है. देन व्हाट इज हैपनिंग? गेटिंग डिस्कनेक्ट.
fine. Now these shares will be deposited here, where? With the outside bank, foreign bank, or custodian, you can say. You can see the simple dollars here. Now what these people will do, these people will create the small packets, will be called as ADRs or GDRs. Suppose they are given GDR, so we will assume that this is GDR and this is given to people. Ultimately these are the shares of Indian company which is distributed to the outside foreign people in the form of GDR. एंड जो भी पैसा यहाँ पे कलेक्ट होगा डॉलर में, नाउ दीज पीपल हियर हैव गिवन द डॉलर्स टू होम? दिस बैंक, कस्टोडियन बैंक, एंड दिस बैंक had given these proceeds to Indian company. जहां पे इंडिया में ये प्रोसेस डायरेक्टली हो रहा है, इंडियन कंपनी गिविंग शेयर्स टू द पीपल एंड शेयर्स प्रोसीडिंग द ट्रांसफर, गिविंग द मनी टू इंडियन कंपनी. हियर द प्रोसीड्स आर रिसीव्ड to the custodian bank of foreign country and they will give the money to the Indian company. या तो फिर इंडियन कंपनी क्या बोलेगी, अपने पास रखे रहो ये पैसा, ये लोगों से पैसा जमा हुआ है नहीं कस्टोडियन बैंक के पास डॉलर्स में, अभी मैंने मशीन खरीदी है उसका पेमेंट करना है, कर दूं क्या? अरे जमा हो गया ना पैसा, देखो टर्म लोन लेना है मैं वो भी कर सकती हूँ, लोन लेके दे सकती हूँ, बाद में रीपे कर दूंगी. अभी जीडीआर से पैसा इसमें डिपॉजिट हो गया ना ये डॉलर्स में, और मैंने फॉरेन से कुछ एसेट खरीदनी, बट उनका एक क्राइटेरिया क्या है कि 3 साल का अच्छा अगर ट्रैक रिकॉर्ड होगा तो आपका डेट या इक्विटी इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से फैला सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडीआर्स एंड जीडीआर्स. अच्छा पैसा कलेक्ट हो गया, मैंने मशीन इक्विपमेंट ली है, उसका मुझे पेमेंट करना है, एक काम करूंगी इस बैंक को बोलूंगी ऑन माई बिहाफ मेक द पेमेंट टू सो एंड सो कंपनी फॉर द मशीन एंड इक्विपमेंट. समझा क्या आपको ये कैसा काम कर रहा है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज. Now read. पढ़ो एक बार. I want you people to read this. टाइम दे रही हूँ, पढ़ लो. बस जो भी पढ़ा वही है इसमें. हो गया क्या? क्या बोल रहे हैं? DR means any instrument in the form of depository receipts or certificate created by the overseas depository bank outside India. अभी डॉलर्स का सिंबल जो बैंक में दिखा ना वो. And issued to the non-resident investors against the issue of ordinary shares. The depository receipts is a negotiable instrument evidencing a fixed number of equity shares of the issuing company, generally denominated in US dollars. ठीक है, ये शेयर्स को वो क्या कर देंगे, समझो अपन ने 10 लाख शेयर्स डिपॉजिट कर दिए इंडियन बैंक में, उन्होंने दे दिए फॉरेन बैंक को. अब फॉरेन बैंक बोल रही है भाई मैं 10 लाख ऐसे शेयर्स में इनको नहीं बेच सकती हूँ इतने लोगों को, मैं क्या करती हूँ 50-50 हजार का शेयर्स का एक एक ऐसा क्रिएट कर देती हूँ. एडीआर बोलो या जीडीआर बोलो, मतलब अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो उसको 50,000 शेयर्स लेने पड़ेंगे विच विल बी कॉल्ड एज अ जीडीआर. ऐसे फॉर्म में पैसा रेज होगा. So it says that evidencing a fixed number of equity shares of issuing company generally denominated in US dollars. DRs are commonly used by those company which sell their securities in international market and expand their shareholding abroad. These securities are listed and traded in international stock exchanges. These can be either American depository receipts, that is ADR, and this can be global depository receipts. ADR will be dealt in America, that is USA, and GDRs it will be in European countries, okay, other than US. So the GDRs will be globally traded other than US, and American will be traded in US. ADRs are generally in case of funds raised through retail market in US, okay, United States of America, and in case of GDR the invitation to participate in the issue cannot be extended to retail US investors. This will not be to US. ADR क्या है? ADR specifically for USA है, and GDR other than USA. Other than USA. It is not for USA but other European countries. बाकी globally कहीं भी trade करो. The DRs are issued in the overseas capital markets. The funds to the issuer are available in foreign currency, generally in
यूएस डॉलर्स। ठीक है क्या? ये डायग्राम से बाकी सब क्लियर है आई थिंक, है ना? देखो पैसा काय में अपने पास जमा हुआ है, दीज पीपल आर पेइंग अस डॉलर्स 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 इनटू दिस बैंक, एंड दिस डॉलर्स इज पर्टिकुलरली ये कस्टोडियन बैंक में रखा हुआ है, किसके बिहाफ पे? इंडियन कंपनी के बिहाफ पे। इंडियन कंपनी के पास अभी क्या अवेलेबल है? डॉलर्स। क्या इशू किया इन्होंने? शेयर्स को। शेयर्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया? जीडीआर में। जीडीआर किसको प्रोवाइड किया? लोगों को, इंटरनेशनली लोगों को वहां पे बांट दिए। वो शेयर्स ही है बट लोगों को जीडीआर बोल के बांटा है। पैसा किस में कलेक्ट हुआ है? डॉलर्स में, फॉरेन कंट्री में। ठीक है, और ये पैसा किसके लिए यूज कर सकते हैं? हम किसके लिए भी यूज कर सकते हैं इंटरनेशनली। मुझे कुछ एसेट खरीदनी है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी अपन ने टर्म लोन का बात किया। अब अगर लोन लेना पॉसिबल नहीं है बट मेरे पास पैसा तो अवेलेबल हो गया ना जीडीआर से, अब मैं बैंक को बोलूंगी पेमेंट कर दे भाई। किसी ने तो मुझे यूट्यूब पर वो एग्जाम है ना, वो नोट लिखा था कमेंट में कि मैम वो जीडीआर एसेट के लिए थोड़ी होता है, इनडायरेक्टली हो सकता है। ठीक है, इट इज फॉर द इशू ऑफ शेयर्स ओनली इन द इंटरनेशनल मार्केट, रेस फंड करना है, बट वो काय के लिए है? अचार थोड़ी डालना है उसका, यूज करना है ना वो फंड को, ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, ऑल्सो द अदर पॉइंट इज टू एक्सपांड देयर शेयर होल्डिंग्स अब्रॉड। अब्रॉड में भी बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, मतलब अब्रॉड में भी लोग जानने लगे कि हाँ ये कंपनी के हमारे पास में ये एडीआर और जीडीआर है। समझा क्या? अब यहाँ पे आ जाओ, एक बार अपन ये ऑपरेशन देख लेते हैं कि कैसा ऑपरेट होता है ये एडीआर जीडीआर। ठीक है, जो भी डायग्राम में पढ़ा था ना वही एक बार इमेजिन करो, उस डायग्राम को इमेजिन करो और ये जो पढ़ रही हो इसको इमेजिन करो। इंडियन कंपनी इश्यूज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, किसको? कस्टोडियन को देगी। दीज शेयर्स आर डिपॉजिटेड विद द कस्टोडियन बैंक, मोस्टली डोमेस्टिक बैंक, मतलब से इंडिया में वो शेयर्स डिपॉजिट कर दिए। डायग्राम को याद करो सिर्फ। इक्विटी शेयर्स हमने दिए किसको? कस्टोडियन बैंक को। दिस कस्टोडियन बैंक एस्टैब्लिशेस अ लिंक विद द डिपॉजिटरी बैंक ओवरसीज, मतलब ये वाला बैंक था हमारा रुपीज में, ये वाला बैंक है कहाँ? लिंक किया था देखो डॉलर्स वाले बैंक के साथ में, मतलब बैंक अब्रॉड। डिपॉजिटरी बैंक इन टर्न इशू डिपॉजिटरी रिसीट्स इन डॉलर्स, किसको इशू करेंगी? लोगों को। Funds are raised when the foreign entities purchase these depository receipts at an agreed price. Correct? The dividends on such issues are paid by the issuing company to the depository bank in local currency. ठीक है, अभी ये जो लोग है फॉरेन अब्रॉड, अपन ने फंड रेज किया है थ्रू शेयर्स ओनली, इनको भी डिविडेंड देना पड़ेगा, है ना? किसको देना पड़ेगा? कंपनी को, जो इशुइंग कंपनी। इशुइंग कंपनी कौन है? इंडियन कंपनी। इनको क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। किसको? बाहर अब्रॉड वाले लोगों को, जिन्होंने हमारा एडीआर और जीडीआर खरीदा है। ठीक है, द डिपॉजिटरी बैंक कन्वर्ट्स द डिविडेंड्स इनटू यूएस डॉलर्स। ये देखो डिपॉजिटरी बैंक को अपन ने दे दिया, भाई अपने पास तो डॉलर्स नहीं है ना, मैंने क्या किया? पैसा जमा किया पूरा, इतना इतना डिविडेंड भरना, इतने पैसे मैंने बैंक के पास में दे दिए कस्टोडियन बैंक के पास। वो कस्टोडियन बैंक क्या करेगा? उस डिविडेंड को कन्वर्ट करेगा डॉलर्स में, क्योंकि वहां के लोग तो ये नहीं बोलने वाले ना, अगर मैं पैसे दे दूं रुपीज में उनको दे दूं तो उन क्या काम का? it is not useful for them, they want dollars. So this depository bank will convert the amount to US dollars and then at a ruling exchange rate and distribute among GDR holders. Similarly it works for ADR. यहाँ पे अगर आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेजेस दिए, नीचे इन्होंने बोला है प्रोसीजर पूरा का पूरा ऐसा ही चलता है। मार्केट ऑफ GDR, द GDR ऑपरेट्स इन अ फॉलोइंग वे। अब एक बार GDR के बारे में पढ़ लो, इसके बारे में अपन डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, बहुत जब कोई कंपनी शेयर्स निकालती है अपने, ठीक है, लिस्ट करके ऐसा निकालती है, तो सबसे ज्यादा भारी तादाद में लोग परचेस नहीं करते, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स परचेस करते हैं। इतनी लोगों की ताकत नहीं है, लोग इतने तादाद में शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करते। सबसे पहले चांस होता है QIPs को, क्वालिफाइड इंटरनेशनल बायर्स। और अगर इनका क्वालिफिकेशन हो जाता है कि भाई QIB ने इनके शेयर्स को अच्छे से सब्सक्राइब किया है कोई भी कंपनी के, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है अब हम लोग अच्छे से खरीद सकते हैं, क्योंकि जब QIB ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि शेयर्स परचेस कर लिए तो हम तो परचेस कर ही सकते हैं। ठीक है, तो QIB पे अपन बाद में ऐसा डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। सेबी में इसका बहुत अच्छा डिस्कशन है। सेबी नाम से ही पता चल रहा है क्वालिफाइड इंटरनेशनल बायर्स। ठीक है, एक बार पढ़ो आप।
GDR is a negotiable instrument. GDR is a negotiable instrument, basically a bearer instrument. bearer का क्या मतलब होता है? जिसके पास वो सर्टिफिकेट है उसको पैसा मिलेगा। जैसे चेक बुक या सॉरी चेक होता है, मैंने चेक लिख के दिया, ठीक है, किसी को दिया, तो वो चेक जो पर्सन जाके बैंक में दिखाएगा, अंटिल एंड अनलेस वो 2 लाइन्स ऐसी नहीं दिए हुए, क्रॉस ऐसे 2 लाइन्स नहीं मारी हुई, ठीक है, वो पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है। लेकिन अगर नॉर्मल चेक है, इट इज एन ट्रांसफरेबल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बेयरर डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं। अगर ये चेक मैंने किसी को दे दिया, वही चेक अगर वो पर्सन किसी और को ट्रांसफर करता है तो उसको पैसा मिलेगा जिसको वो चेक दिया है, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट, बेसिकली अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट विच इज ट्रेडेड फ्रीली इन द इंटरनेशनल मार्केट आइदर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज और ओवर द काउंटर और अमॉन्ग QIBs, ठीक है। इट इज डिनोमिनेटेड इन US डॉलर्स and represent shares listed in the local currency, ठीक है। ये अपन ने देख ही लिया, ADR GDR अपने US डॉलर्स में डिनोमिनेटेड रहते। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो। द शेयर्स अंडरलाइनिंग द GDR डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट, इनके पास में कोई वोटिंग राइट नहीं रहेगा। दिस इज जस्ट दैट हमको इंटरनेशनली हमारे शेयर्स को ट्रेड करवाना है एंड फंड रेज करना है, वी डू दिस, बट दे डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट। हम लोग उनको नहीं बोलेंगे ठीक है हमारी ये कंपनी का इंडिया में डिसीजन है और आप हम इस पे वोट करो, नो, वी आर नॉट गिविंग दैट राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स व्हाट, उसके क्या क्या अलग अलग क्या बोलते हैं, कुछ चीजें वो रिप्रेजेंट करता है। GDR का क्या कैरेक्टर है वो दर्शा रहा है यहाँ पे कि ये वोटिंग राइट कैरी नहीं करता। द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्रीली ट्रेडेड इन इंटरनेशनल मार्केट, मतलब एक दूसरे को ट्रांसफरेबल है वो डॉक्यूमेंट। द इन्वेस्टर्स अर्न फिक्स्ड इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, मतलब इंडियन कंपनीज डिविडेंड बांटती है, इंडियन लोगों को भी बांटती है शेयर्स पे। तो ये जो ADR GDR है ये शेयर्स ही है बट कन्वर्टेड है GDR वगैरह में, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो उन लोगों को भी कुछ इनकम चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो इंडियन कंपनीज ये डिविडेंड उनको देगी, है ना, किसको देगी, पहले कस्टोडियन बैंक को देगी, वो बैंक US वाले बैंक को देगी, वो उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके लोगों तक बांट देंगे। तो दे अर्न अ फिक्स्ड रेट ऑफ इनकम एज डिविडेंड। GDRs आर कन्वर्टेड इनटू अंडरलाइंग शेयर्स डिपॉजिटरी कस्टोडियन बैंक रिड्यूसिंग द इशू। अगेन अगर अपने को अगर GDR वगैरह का इशू कम कर देना है तो अपन क्या कर लेंगे, उसको वापस से शेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, थ्रू कस्टोडियन बैंक्स। समझा क्या? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑपरेशन अपन ने समझ लिया, ऑपरेशन अब वो इससे भी समझ सकते हैं। ये देखो, ये यहाँ से शेयर्स आर डिपॉजिटेड टू, है ना, डोमेस्टिक कस्टोडियन, ये एक लिंक एस्टैब्लिश करेगा, ये यहाँ पे एक लिंक एस्टैब्लिश कर लिया आउटसाइड इंडिया। वहां पे उन्होंने क्या कर लिया, GDRs को कन्वर्ट, शेयर्स को GDRs में कन्वर्ट कर लिया, लोगों तक बांट दिया, लोगों से पैसा ले लिया, किसमें, डॉलर्स में। दिस इज हाउ दे हैव रेज्ड द फंड इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। ऑल राइट, वी आर डन विथ GDRs। अभी ADRs आपको होमवर्क है, सेम टू सेम है एकदम, फर्क सिर्फ इतना है GDRs आर ग्लोबली ट्रेडेड, ADRs खाली US मार्केट में जाते हैं और GDR को आप US में ट्रेड नहीं कर सकते, इट इज अदर देन US। आप अगर ऊपर पढ़ेंगे यहाँ पर, इन केस ऑफ GDR द इन्विटेशन और टू पार्टिसिपेट इन द इशू कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू रिटेल US इन्वेस्टर्स। USA में ये ट्रेड नहीं होते। USA में क्या ट्रेड होता है, ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। ADRs are those which are issued and listed in any of the stock exchange of US. It is an investment in the stock of non-US corporation trading in the US stock exchange. Characteristics क्या है, do not, may or may not have voting rights. ऊपर क्या बोला है, do not carry any voting rights. Global मतलब ये हर जगह, अमेरिकन मतलब सिर्फ अमेरिका में ट्रेड हो रहे हैं, तो ये कैरी कर भी सकते हैं वोटिंग राइट या नहीं भी कर सकते। ये सिर्फ अमेरिका के हद तक है, USA। और GDR मतलब ग्लोबली अदर देन US। तो ग्लोबली हर किसी के पास जाके बोलेंगे क्या, वोट करो वोट करो वोट करो, नहीं, हमको रिक्वायर्ड नहीं है। एंड इट मे कैरी और मे नॉट कैरी वोटिंग राइट, हो भी सकता है वोटिंग राइट, हम पूछ भी सकते हैं कि अमेरिका के इन्वेस्टर्स को कि भाई वोट करो, नहीं तो वी विल से दैट आपका कोई इससे लेन देन नहीं है, आपकी वोट की गरज नहीं है। ADRs आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस लेड बाय SEE USA, ठीक है। वहां का कोई एक क्या बोल सकते हैं, जहाँ का जैसे यहाँ का सेबी है वैसे वहां का ये SEE
SEC USA है, अपन देख लेते हैं SEC USA, एक सेकेंड, SEC USA क्या बोलते हैं इसको? द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ओवरसीज, सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस, समझा क्या? लिख दो ये फुल फॉर्म, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन USA, वहां के प्रोविजंस के हिसाब से ADRs इशू होंगे। ADRs आर bearer negotiable instrument and the holder can sell the same in the market, ठीक है? इट इज एज गुड एज bearer डॉक्यूमेंट, कि मेरे पास है, मैंने किसी और को सेल कर दिया पैसे के लिए, ही इज द होल्डर ऑफ दैट ADR, फिर वो ADR किसी और को सेल कर सकता है, यस बिल्कुल, इट इज अ bearer negotiable instrument। ADRs once sold can be reissued, ठीक है, मतलब एक बार मैंने बेच दिया तो इसको री इशू भी कर सकते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ ADR इज सिमिलर टू दैट ऑफ GDR, मतलब जो ऑपरेट्स हमने देखा था वो कस्टोडियन बैंक लिंक, देन इट सेल्स टू द पीपल इन द फॉरेन, एंड देन वहां से जो डॉलर्स या फिर यूरोज कलेक्ट होते हैं, यूरोज इन द फॉर्म ऑफ यूरोज इन GDR, या फिर डॉलर्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, US में खाली डॉलर्स रहेगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, ADRs आर इजी कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इंडिविजुअल्स टू होल्ड एंड ओन द शेयर्स इन फॉरेन कंट्री। USA के लिए इंडिया फॉरेन कंट्री है, ठीक है, USA के लिए इंडिया फॉरेन कंट्री है। जैसे अपन क्या बोलते हैं, इंडिया से अगर किसी को US जाना है तो अपन बोलते हैं फॉरेन, वैसे USA से किसी को इंडिया आना है तो वो बोलता है फॉरेन, ठीक है क्या? So it says ADRs are easy cost effective way of individuals to hold and own shares in foreign country. They save considerable money by reducing administration cost and avoiding foreign taxes on each transaction. ठीक है, अभी ये एडमिनिस्ट्रेशन, अभी ये पूछना मत मैम ये कैसा काम करता है, इट इज जस्ट दैट दे सेव कंसिडरेबल मनी बाय रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। जैसे अपन ने इंडिया में कंपनी बनाई, इसमें शेयर्स लिस्ट किए, शेयर्स बांटे, लोगों ने पैसे दिए, ये सब चलाने के लिए अपने को पैसा लग रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लग रहा है। पर अगर मुझे वही काम ADRs GDRs के थ्रू करना है तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, ये सारा कस्टोडियन बैंक कर रही है, तो आई सेव द अमाउंट ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, दैट्स इट आई कैन से, ठीक है। दे सेव कंसिडरेबल मनी बाय रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड अवॉइडिंग फॉरेन टैक्सेस ऑन ईच ट्रांजैक्शन, ठीक है। मैं एक ही बार सारे शेयर्स को डिपॉजिट कर देती हूँ, वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिंक के थ्रू डॉलर्स में, एंड फिर लोगों को वो डायरेक्टली GDRs के थ्रू बढ़ते हैं, तो हर एक ट्रांजैक्शन पे ये सारा तामझाम बच जाता है, ठीक है। डन है क्या ADR एंड GDR? के बाद में का जो भी रहेगा अब अपन आगे पढ़ेंगे, और आई थिंक इतना काफी है क्या आज के दिन? मैं पूछूं क्या इसमें से कुछ आपको? चलो डिफरेंस पूछती हूँ। हाँ, लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ रेंटिंग मैम, तो एसेट की वगैरह होती है, दो चीजें होती है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज किसका होता है? कंप्यूटर, व्हीकल, है ना, एक्सेट्रा, ऐसे छोटे छोटे एसेट्स का ऑपरेटिंग लीज होता है। फाइनेंस का लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट कुछ रहेगा तो फाइनेंस लीज। मैम ऑपरेटिंग लीज कैसा काम करता है? ऑपरेटिंग लीज काम करता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, विच इज लेस देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एज वेल, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि भाई पूरा का पूरा जो कॉस्ट होता है वो एमोर्टाइज ना भी हो पाए, तो अगर अपने को अगर उसका पूरा रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट रिकवर करना है तो मे बी अपने को और सारे लीजेज में डील करना पड़ेगा, और लोगों को लीज करना पड़ेगा, या तो फिर एसेट को सेल कर देना पड़ेगा, सो दैट आई कैन रिकवर द कॉस्ट एंड रेट ऑफ रिटर्न। देन इट इज अ कैंसिलेबल लीज ऑन अ शॉर्ट नोटिस बाय द लेसी। और क्या है इसमें? वी कैन रिन्यू द लीज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लीज पीरियड, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। देन उसके बाद में अगर फाइनेंस पे आएंगे, फाइनेंस लीज पे आएंगे, तो इट सेज the present value of all lease and rentals payable during the period exceeds the substantial value fair value of the asset, मतलब asset की वैल्यू से ये लीज रेंटल्स की वैल्यू जो होती है वो हायर होती है। दैट्स हाउ द लेसर अर्न्स द रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज रेट उनका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न। देन इट इज नॉन कैंसिलेबल, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म,
it usually recovers its cost of asset. Then gross lease, net lease मैंने उधर लिख दिया है आपको. Then if these people want to renew the lease, they can do the same for a further period at normal rent. Term loans क्या होते हैं? Term loans you can raise the finance through national and state level markets. अगर internationally कोई asset वगैरह purchase करनी है, then you need to make the payment in the foreign currency. But you can raise the fund in foreign currency only after you have a good track record of 3 years or more. Raise funds in equity and debt capital in international market. और international sources क्या क्या है? Depository receipts. First of all, they have explained what is depository receipt. It is a certificate or a depository receipt which is issued to the overseas depository bank outside India, and these are the negotiable instrument denominated in US dollars to raise the funding abroad, to expand their shareholdings abroad. So these are of two types, ADR and GDR. ADR is traded in American market, that is what USA, and GDRs except USA it is traded everywhere, called as European countries. Okay, and then it is denominated in dollars. Also, what is global depository receipts? It is freely traded in international market through stock exchange, over the counter or QIBs. Then उसके characteristics क्या है? They do not carry any voting right, क्योंकि इतने सारे ADRs कैरी कर सकते हैं, may और may not carry, और यहाँ पे they do not carry. They do not carry. नीचे क्या बोला है? ADR में they may और may not carry. ये थोड़ा ध्यान रखना. This is a MCQ type question. ठीक है, may और may not carry. Instruments are freely traded in international markets. Investors earn fixed rate by way of dividend, and they can be converted into underlying shares back again. ठीक है, by reducing the issue. ठीक है. Then what are the steps followed if they want to issue GDR? How it operates? Step 1, step 2 क्या होता है? तो वो डायग्राम को याद करो. इंडियन एक कंपनी है जिसको अपने शेयर्स को बाहर रेस करना है, मतलब बाहर भी बांटना है, अपने शेयर होल्डिंग का बेस बनाना है. तो इंडियन कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को इश्यू करेंगी इंडियन कस्टोडियन बैंक को. वो बैंक अपना एक लिंक एस्टैब्लिश करेगी बाहर के एक डिपॉजिटरी बैंक के साथ. वो डिपॉजिटरी बैंक उस रिसीट्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करेगी, और वो फॉरेन अपने जो GDRs है या ADRs है वो किसको देगी? लोगों को देगी एट अग्रीड प्राइस. ठीक है. डिविडेंड्स ऑन द इशूड आर पेड बाय द इशूइंग कंपनी टू डिपॉजिटरी बैंक इन लोकल करेंसी. वो रुपये में पहले डिपॉजिट देगी किसको? कस्टोडियन बैंक इंडिया में. फिर वो बैंक अगेन डिपॉजिटरी बैंक को बोलेगी ये रहा डिविडेंड का अमाउंट, वो उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके किसको देगी? वो देगी वहां पे GDRs और ADR होल्डर्स. ठीक है. आई थिंक अभी के लिए यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर ADRs एंड GDRs. ठीक है, टू रेज फंड इन फॉरेन मार्केट. ADRs कहाँ पे ट्रेड होता है बताओ जल्दी? अमेरिका में, मतलब USA में. और वो GDR मैम वो अदर देन US, बाकी हर जगह ग्लोबली. अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये एक बार पढ़ लो. ऑपरेटिंग वर्सेस फाइनेंस लीज दिख रहा है क्या? इज इट विजिबल? मीनिंग ऑपरेटिंग लीज, रेंटल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन विच रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिमेन विद द लेसोर. ऑपरेटिंग लीज में रिस्क वगैरह किसका है? लेसोर का. फाइनेंशियल लीज में लोन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन विच रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू लेसी. सब कुछ लेसी के पास. तू देख भाई मैंने ऐसे ट्रांसफर कर दिया. ओनरशिप रिमेन्स विथ लेसोर. किसमें? ऑपरेटिंग लीज में. फाइनेंस में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू लेसी. समझा क्या यहाँ पे आपको? ओनरशिप फाइनेंस में किसको ट्रांसफर हो गई? लेसी को. क्या क्या लीज होता है यहाँ पे? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स है वो फाइनेंस में आती है. अगर ये लीज होता है तो ओनर कौन बन जाता है इस केस में? लेसी. और ऑपरेटिंग में ओनर इज स्टिल द लेसोर. नीचे आ जाओ. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. लेसी हैज टू शो द लीज पेमेंट एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. द लीज्ड एसेट इज एन ऑफ शीट बैलेंस आइटम ऑफ द लेसी. लेसी के बैलेंस शीट में हम इस एसेट को नहीं बताएंगे. से व्हीकल है, कंप्यूटर है, इसको हम बैलेंस शीट में बताएंगे क्या लेसी के? नहीं. सिंस यहाँ पे ये जो लेसी है फाइनेंस लीज के केस में ये ओनर बन चुका है, तो यहाँ पे देखो लेसी कैन शो द डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट व्हाइल लीज पेमेंट कैन बी ट्रीटेड एज एन इंटरेस्ट. समझा? लीज्ड एसेट
इज शोन ऑन द बैलेंस शीट। यहाँ पे फाइनेंस लीज में अपन ने ऊपर पढ़ा, लेसी कौन बन गया, ओनर। लीज रेंटल्स को क्या शो करेंगे, इंटरेस्ट के पेमेंट के, इंटरेस्ट पेमेंट शो करेंगे क्या, लीज पेमेंट। और ऑपरेटिंग में अपन उसको लीज, इसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। लेसी हैज टू शो द लीज पेमेंट एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और यहाँ पे ये दो चीजें होगी, डेप्रिसिएशन शो करेंगे एसेट के ऊपर, और दूसरा जो पेमेंट्स रहेगा लीज पेमेंट्स, उसको इंटरेस्ट के नाम से बताएंगे। ठीक है, मतलब ये बैलेंस शीट में एसेट दिखेगी लेसी के। लीज टर्म, ऑपरेटिंग लीज इट इज फॉर शॉर्ट टर्म, यू गेट द पॉइंट, एंड फाइनेंशियल लीज इट इज फॉर लॉन्ग टर्म। नीचे आ जाओ, एक्सपेंस एंड रनिंग कॉस्ट, लेसी पेज ओनली द लीज पेमेंट्स। ऑपरेटिंग लीज में लेसी क्या भरता है, खाली लीज पेमेंट्स भरता है। और फाइनेंशियल लीज में लेसी बेयर्स ऑल द एक्सपेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, टैक्सेस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अपन ने ऑपरेटिंग लीज में देखा, लेसर भरता है ये सारा एक्सपेंस, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, टैक्सेस, किसमें, ऑपरेटिंग में। और नॉर्मल केस में, फाइनेंस के केस में ये सब कौन बेयर करेगा, लेसी। ठीक है, एसोसिएटेड विद द लीज्ड एसेट। ओके, ऑपरेटिंग लीज, रिस्क एंड ऑब्सोलेंस, ऑपरेटिंग लीज में लाइज विद द लेसर। अपन ने लिखते टाइम भी देखा कि रिस्क किसकी है, लेसर की। और फाइनेंशियल इस केस में किसकी रिस्क है, लेसी की, क्योंकि एवरीथिंग इज ट्रांसफर टू लेसी, ओनरशिप के साथ सब। ठीक है, देन एग्जाम्पल ये देखो, ऑपरेटिंग लीज, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स आर यूजुअली लीज थ्रू शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट। आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा राइटिंग ऐसा एकदम फ्लैट है, आई थिंक इसीलिए ऐसा दिख रहा है। आई कैन डू वन थिंग, वेट जस्ट वेट अ सेकेंड। अब सही दिख रहा है क्या, देखो। ये देख लो, ऑपरेटिंग लीज में ये सारा है, प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड ऑल। फाइनेंशियल लीज में plant, machinery, land, buildings are usually leased through long term financial lease agreements. समझा क्या, ऑल राइट। ये सब अपन ने लिख लिया, कहाँ पे, यहाँ पे। अब देख सकते हो, ये देखो, ये लेसोर, रिस्क किसका है, लेसोर का। ये सब किसके पास में रहता है, लेसी के पास में। और रिस्क भी किसका है, रिस्क किसका है, लेसी का। ठीक है, खाली एक पॉइंटर इसमें जो अपन ने ऐड नहीं किया है वो भी ऐड कर दो यहाँ पे, नंबर 8, लेसी, लेसोर इज द ओनर, यहाँ पे लिख दो, लेसोर इज द ओनर ऑफ द एसेट। यहाँ पे लेसी इज द ओनर ऑफ द एसेट। ये क्या रहेगा, एक्सपेंस ट्रीट करेंगे इसको, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहेगा। और ये एसेट ट्रीट करेंगे, जो बैलेंस शीट में दिखेगा। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा P&L अकाउंट में। एंड इसका जो लीज रेंटल्स रहेगा वो क्या रहेगा, इंटरेस्ट। जो भी ऊपर का अमाउंट रहेगा अदर देन एसेट, अपने को क्या करना है, लेसर, लेसी को कॉस्ट से ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मतलब 20 लाख का अगर एसेट है तो हम 20 लाख ही रिकवर नहीं करते लेसी से, उससे ज्यादा रिकवर करते हैं। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है, उसको हम लीज रेंटल के नाम से ट्रीट करेंगे। समझा क्या, ये डायग्राम अगर छोटा सा बना सकते हो आपके कॉपी में तो बना लो। आई नो एग्जैक्टली ऐसा इतना डिजाइनर नहीं बनेगा, लेकिन आप ये लिख तो सकते हो ना, ये इंडियन कंपनी है, ऐसा थोड़ा सा बैंक का ये सिंबल बना के वहां पे रूपी लगा के। राइट डाउन डोमेस्टिक कस्टोडियन, यहाँ पे लिख दो फॉरेन कस्टोडियन। ये होगी लिंक बिटवीन द टू, है ना, फॉरेन कस्टोडियन। थोड़ा सा बना दो, सो दैट आपको बाद में एकदम इजीली ध्यान में आ जाएगा उसका प्रोसेस फ्लो वगैरह, ऑपरेशन, ऑपरेट्स।
GDR operates, how GDR operates, ऐसे लिख दो, how GDRs operate. आई होप सो अभी आपको लर्न हो गया है. हाँ, क्वेश्चंस पूछेंगे. टेल अस हाउ द GDRs operates in the foreign market. You need to write down all this. डायग्राम बनाओगे तो और अच्छा. प्रेजेंटेशन मैटर्स एंड इट इज अ मैटर ऑफ योर चॉइस. हो गया. चलो, मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे के इंटरनेशनल सोर्सेज के साथ में. और दूसरा, आपको इंटरेस्टिंग वो सब पढ़ने मिलेगा. फैक्टरिंग क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं. तो एफएम में अपन ये सब क्यों पढ़ रहे हैं पता है क्या? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सब मैनेजमेंट ही है. पैसा कैसा मैनेज करे, इंटरनेशनल पेमेंट करना है क्या करे, है ना, कोई एसेट खरीदनी है, या अपने को क्या करना है, कोई रॉ मटेरियल या कुछ परचेस करना है, कहीं से कुछ लोकली परचेस करना है, तो फैक्टरिंग एक ऑप्शन होता है. देखेंगे कैसे काम करता है. मतलब बिना पैसे के भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, या इंटरनेशनली अगर मुझे कोई चीज करनी है तो ये सारा ऑप्शंस भी अवेलेबल है. पैसे का मैनेजमेंट वही हुआ ना. चलो, हैव अ गुड डे, बाय बाय.